Hello students, in the last lecture we studied about a truly beautiful mind and I explained to you the first part of that chapter. Today I will explain to you the second part. So let's get started students. So we were on page number 48, correct? Now students, till now I have told you about Albert Einstein, and at the time when he was born he was a dumb child, right? And he was not able to speak up to the age of 2.5 years, and his mother thought he was a freak. He was also called brother boring by his friends because he never enjoyed any sport. He did not enjoy the kind of environment where he was being brought up. Also, I told you that when he was studying in the school at Munich, and Munich was the place of experimentation for Hitler's Germany, and that was the reason that he was exposed to extreme regimentation by the school, right? Regimentation means extreme discipline by the school. So Hitler was trying to make the boys very violent, right? He wanted to teach them boxing, martial arts and all such things. He wanted them to create hatred for the other countries, for the people of other countries, and all such things led Einstein to believe that he could not fit into such kind of environment, because Einstein was a fun-loving kid, not a kind of dashing personality. So Einstein had to leave Munich and then he went to Zurich, Switzerland. In Switzerland, he started studying in mathematics and physics, and there he met the love of his life, Mileva Maric. Mileva Maric had come from Serbia, and she had a familiar background because she also struggled to be with her parents. Her parents were very strict with her and they never wanted her to leave Russia because Russia was ruling over Serbia at that time, right? And in Russia the girls were not receiving education. Switzerland was the only country in Europe which was giving education to girls. So Mileva Maric, she also, Einstein calls her a clever creature because she also is like him. She is at odds with her family in the same way like Einstein is at odds with friends and the teachers at Munich, right? So in the last part that we discussed in the lecture before this, it was how Einstein proposes to Mileva, right? So that was a funny way of proposing, and I told you that it is not at all a way to propose. Normally a boy will propose a girl with a rose or something, a kind of a candlelight dinner, but he proposes in the language of science, right? And even the girl agrees to his proposal, right? आज के टाइम पे अगर कोई लड़का इस तरह से proposal रखे तो probably the girl would just leave him or she would just give him a slap and just tell him that you are an idiot. But Mileva also thinks the same way like Einstein thinks, and therefore अपने ऐसे बोलते हैं ना, दो दुखियारे इंसान, ठीक है, दोनों आपस में मिल गए हैं. So now let's read further. In 1900,
At the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो स्टूडेंट्स देखिए, उस टाइम पे यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता था. देयर वॉज हैवी अनरेस्ट इन यूरोप, और यही रीजन था कि बहुत सारे यंग लड़के वॉर में ज्वाइन हो जाते थे. यूरोप वॉज इन अ स्टेट ऑफ टोटल अनरेस्ट स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. ये 1900 जो है, इट इज द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. उस टाइम पे यूरोप में एक्सट्रीम अनरेस्ट होता था, जिसकी वजह से ये जो यंग लड़के होते थे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये आर्मीज में ज्वाइन हो जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम मिल जाए. सो ही वॉज अनएम्प्लॉयड, सो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट मतलब, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने, बहुत सारे लोग आप में से द्रोणाचार्य एकेडमी में पहले से है, तो आप लोगों को पता होगा that in Dronacharya Academy also we have main teachers and we have some tutors. Tutors का काम है backup work and all such things. So कई बार जो main teachers में students को अगर कुछ point समझ में नहीं आया हो, lecture का छोटा बड़ा doubt हो, या homework करने में कुछ doubt हो, checking के लिए देना हो, तो there are tutors. But this is the work of teaching assistant. Teaching assistant is a tutor who is working under the main faculties, the main teachers, right? So an assistant teacher or helping the main teacher. This is called a teaching assistant. And he gave private lessons. Private lessons means ये main teachers जो होते हैं वो पूरे क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है. जैसे similar to द्रोणाचार्य एकेडमी, as I told you, कि जो पहला लेक्चर होता है वो मेन टीचर लेते हैं, बराबर. फिर उस लेक्चर के अंदर अगर एक आध स्टूडेंट एब्सेंट हो, या कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा हो जो कोई एक पॉइंट नहीं समझ पाया हो, या चैप्टर के अंदर एक दो लाइन हो वो नहीं समझ पाए हो, तो वो जो ट्यूटर्स है वो प्रेजेंट रहते ही है, एंड दे एक्सप्लेन इट टू हिम. So they gave private lessons and finally secured a job in 1902 as the technical expert in the patent office in Bern. Patent office क्या होता है students? So apart from being a teaching assistant, he was given a second job of the patent office. Students, आपको पेटेंट के बारे में पता होगा. जैसे कि सपोज मान लीजिए आप कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करते हो, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करते हो, और ऐसी डिस्कवरी जो पहले कभी किसी ने ना की हो, तो उस केस में आपको उस डिस्कवरी का पेटेंट दिया जाता है. पेटेंट का मतलब होता है कि वो डिस्कवरी का नेम आपके नाम के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये डिस्कवरी इस इंसान ने की है, और आगे अगर फिर से कोई इसी काम को रिसर्च या डिस्कवर करता है तो उसका नाम फिर से नहीं जोड़ा जाएगा, और इसी से साइंटिस्ट का नाम बढ़ता है. जैसे हम बोलते हैं कि ये न्यूटन इन्वेंटेड द लॉज ऑफ मोशन, बराबर. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन के लॉज है. इन द सेम वे गैलीलियो, he discovered gravity. So all these things, they are registered in their respective names. James Watt invented the steam engine, right? Stephen Hawking invented the black holes. So all these things are patented in the name of respective scientist.
तो इसका काम क्या था, पेटेंट ऑफिस में ये एक काम करता था कि जो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो अपना रिसर्च वर्क देते थे, उनके रिसर्च वर्क को स्टडी करना, और वो रिसर्च वर्क अगर सच में ऑथेंटिक हो, अगर वो रिसर्च वर्क ऐसा हो जो एकदम न्यू हो अपने अपने फील्ड में, और अगर उसमें सच में सक्सेसफुल कंक्लूजन्स आते हो, तो वो उस वर्क को पेटेंट करता था, बराबर। एंड दिस वाज इन बर्न। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, ठीक है। इट इज अनदर सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड विच इज द कैपिटल सिटी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret, and he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, while he was supposed to be assessing other people's work, उसका मेन काम क्या था यहाँ पे, असिस्टेंट टीचर का मेन काम क्या, या ये पेटेंट ऑफिस में मेन काम क्या है उसका मेन काम है कि वो दूसरे लोगों का काम चेकिंग करे। असिस्टेंट टीचर जो होता है वो दूसरे टीचर्स का काम चेकिंग करता है, बराबर। जो स्टूडेंट्स नोटबुक्स देते हैं उनको चेकिंग करना, सम्स चेक करना, ये सब। पेटेंट ऑफिस के अंदर भी जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्री करवाने आते हैं, जो अपना रिसर्च पेपर्स देते हैं, उनको स्टडी करते हैं। But what he started doing was something different. उसने क्या किया, उसने उनका काम चेकिंग करते करते अपना काम सीक्रेटली करना शुरू किया, अपने थॉट्स को पेपर्स पे रखना शुरू किया, और यहां से स्टार्ट हुई उसकी मोस्ट फेमस थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो E इक्वल टू mc² मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, वो चीज का रिसर्च उसने इस जॉब के साथ साथ, बिकॉज ही वॉज हैविंग फ्री टाइम, उसने ये स्टार्ट किया। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आई हैव रेड एल्बर्ट आइंस्टाइन्स ऑटोबायोग्राफी, एंड उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली है कि ही वॉज मेकिंग टू मैनी मिस्टेक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं सब एल्बर्ट आइंस्टाइन है। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप ज्यादा मिस्टेक्स करते हो तो उसको सुधारने का ट्राई करो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता हूं तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरी चकाचकी इतनी होती है तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, बी पॉजिटिव अबाउट इट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचे? नेवर डू दैट, ठीक है। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू टेल ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी पॉजिटिव अबाउट देयर ओन सेल्फ। कभी भी नेगेटिव खुद के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचने का, जरूरत ही नहीं है। हर एक इंसान खुद में एक मास्टरपीस है। एवरीवन इज अ मास्टरपीस इन हिज ओन वे। व्हाई टू थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, राइट? So Einstein was actually developing his own ideas in secret, and what he calls his desk drawer, he calls his desk drawer as the bureau. Bureau मतलब पूरा एक office of theoretical physics, the papers that he is writing on physics. So I will just write the meaning of this patent office.
Now, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Now, this is the theory of relativity about which Einstein is very well known. According to which time and distance are not absolute. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइम एंड डिस्टेंस जब हम एक तरह से कंसीडर करते हैं तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। देखिए, मैं आपको समझाता हूं आइंस्टाइन ने क्या बोलने की कोशिश की है। जैसे कि क्रिकेट में, सपोज क्रिकेट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्रिकेट में फास्ट बॉलर होता है, उसका बॉल का स्पीड अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्ट बॉलर दौड़ के बॉल को डालता है, दौड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके सामने जो स्पिनर होता है, जो स्पिन करके बॉल को डालते हैं, वो रन अप बहुत छोटा लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो बॉल स्पीड होती है वो अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर क्योंकि उसमें सिर्फ थ्रो करने की स्पीड होती है। स्पिनर जब बॉल को थ्रो करता है सिर्फ ऐसे थ्रो करने की स्पीड है, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर। और फास्ट बॉलर जो है वो बहुत लंबा रनअप लेते हैं, तो लंबा रनअप लेने की वजह से क्या होता है, वो थ्रो करने की स्पीड में उनकी रनिंग की स्पीड प्लस हो जाती है, जिसकी वजह से वो बॉल ज्यादा स्पीड में जाता है। लेकिन इसके साथ ही अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट अगर सपोज स्टैंडिंग कार की ऑन की जाए तो इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एज फ्रॉम अ रनिंग कार। सपोज एक कार है, यहां पर खड़ी है, इस पॉइंट पर सपोज कार ए खड़ी है, यहां पे कार ए खड़ी है, यहां पे खड़े खड़े उसका लाइट ऑन किया जाए तो वो इस दीवार तक पहुंचेगी। अब अगर वही कार पीछे से रनिंग करते करते यहां पर आए पॉइंट बी तक, यहां तक अगर रनिंग कार मतलब चलती हुई कार यहां तक आती है और लाइट ऑन करती है, तो भी उसको यहां पर वो लाइट पहुंचेगी, बराबर। और दोनों गाड़ियां, सपोज ये स्टैंडिंग कार और ये रनिंग कार, अगर यहां पर लाइट ऑन करते हैं तो ये सेम डिस्टेंस वो कवर कर पाती है। तो आइंस्टाइन ने सोचा कि जो चीज यहां पर चेंज होती है, यानी स्पीड, वो चीज यहां पर चेंज क्यों नहीं होती। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड इट इज कांस्टेंट, राइट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस ये भी फिक्स है, तो बदल क्या रहा है, बदल रहा है टाइम। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यहां से इन्वेंट हुआ लाइट ईयर, कि किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो हम तक पहुंचने में जितना वक्त लगाती है, उस मेजर को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। लाइट ईयर shows not only how far the object is, but also how old the object is. जैसे सन की लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, तो अगर सन पे कुछ होता है तो हमें अर्थ पे 8 मिनट के बाद पता चलेगा। एक दूसरे स्टार के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे उस स्टार से लाइट निकलती है और हम तक अभी पहुंचती है। तो हो सकता है कि वो स्टार अभी तक हो ही नहीं, अभी वो स्टार उस जगह पर हो ही नहीं। इट इज पॉसिबल, यस, उस स्टार की लाइफ खत्म हो चुकी हो, लेकिन हमें वो स्टार 700 इयर्स तक दिखाई देगा।
क्योंकि उसकी लाइट आ रही है, उसकी लाइट एग्जिस्ट करती है। जब 700 इयर्स के बाद के लोग होंगे वो उस स्टार को एक्सटिंग्विश होते हुए या एक्सप्लोड होते हुए या किसी भी तरह से उसको खत्म होते हुए देख पाएंगे, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे, राइट? तो ये दोनों चीजों को आप समझ लो। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है, और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, डिस्टेंस is fixed between 2 points. So what changes is time, right? So this is what he discovered in the theory of relativity, और इसी से उसका फॉर्मूला जनरेट होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर का। So indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, and if one of them has been moving very fast relative to the other. तो यहां पे देखिए दो क्लॉक्स, आप ध्यान से देखोगे ना तो 24 आवर्स के बाद एग्जैक्टली दोनों क्लॉक्स सेम टाइम कभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा 1-2 सेकेंड का फर्क तो होता ही है, जबकि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट किए गए हो। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बहुत महीनों के बाद देखेंगे कि यार ये घड़ी 5 मिनट पीछे हो गई है, या ये वाली घड़ी 5 मिनट आगे है, फिर उसको टाइम सेट करते हैं। ये एक्चुअली एक दिन में नहीं होता है, वो नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, लेकिन 1-2 सेकेंड वो घड़ी डिले होती जाती है या फास्ट होती जाती है। सो दिस इज हाउ टाइम वर्क्स। So from this followed the world most famous formula where it describes the relationship between the mass and energy. So in this equation, E stands for energy, M stands for mass, and C for the speed of light, that is 3 lakh kilometer per second, which is constant. Okay? यहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही है। ये जो कलर्ड बॉक्स दिया हुआ है नीचे इसी पेज पर, पेज नंबर 48 पर एक कलर्ड बॉक्स दिया है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज कही है, जोक मारा है कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। एक अच्छी ब्यूटीफुल लड़की के साथ बैठो, 2 घंटे गप्पे मारो, तो इट सीम्स लाइक 2 minutes टू अ बॉय, बट व्हेन यू सिट ऑन द हॉट स्टव फॉर 2 minutes, हाउस वाइफ्स होती है वो घर पे खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए 2 मिनट रुकती है ना पसीने में, तो उनके लिए वो 2 मिनट 2 घंटों के बराबर होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो टाइम तो सेम है, बट द मीनिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट टाइम इज डिफरेंट। इफ यू टॉक टू द ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 2 minutes, इट विल अपीयर लाइक अरे यार खाली 10 सेकेंड बात हुई, और ज्यादा बात कर लेते। But if you stand in front of a hot stove or hot gas for 2 minutes, then probably it will be 2 hours for you. अरे यार मान ये काम से छुटकारा मिला, right? Housewives को ऐसा होता है प्रॉब्लम। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होती। तो हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, दैट इज स्टार्टेड फेलिंग। प्राइवेट लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ विथ वाइफ, विथ चिल्ड्रन, इट स्टार्टेड फेलिंग, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान रिलेटिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। स्टूडेंट्स, एक मैन को लाइफ में
दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, वर्क पर भी और फैमिली पर भी। लेकिन ऐसे एक्सपर्ट्स पूरी लाइफ अपने वर्क पर ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली पीछे छूट जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू आइंस्टाइन। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. तो पहले तो आइंस्टाइन को मिलेवा से तुरंत शादी करनी थी, आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज। लेकिन उसकी मदर को मिलेवा पसंद नहीं थी। इसके दो रीजंस थे। पहली चीज कि वो दूसरे कंट्री की थी, और दूसरी चीज कि she thought that she was too intelligent for Einstein। भाई ये तो मेरे बेटे पे डोमिनेट करेगी, ये कुछ ज्यादा ही क्लेवर है, ठीक है। She thought Mileva, who was also 3 years older than her son, was too old for him, and she was also bothered by Mileva's intelligence। मतलब उसकी मदर को ये दो चीजों से प्रॉब्लम थी। दूसरी कंट्री की लड़की है वो तो ठीक है, लेकिन मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी एज में, और दूसरी चीज वो आइंस्टाइन से ज्यादा क्लेवर थी। तो अगर लड़की ज्यादा क्लेवर हो तो वो लड़के की मदर सोचेगी कि यार ये मेरा लड़का बेचारा डम्बो, और ये लड़की इतना ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती है, ये इसको डोमिनेट करेगी, जीने नहीं देगी शांति से। दिस इज व्हाट द मदर बिलीव्स, ओके, नॉट द रियलिटी, दैट इज व्हाट द मदर बिलीव्स। After years, she is a book like you, the mother said, and Einstein put the wedding off. So put the wedding off means delayed the wedding. Off तो नहीं करेगा ये, put the wedding off means delayed the wedding. The pair finally married in January 1903. अब जनवरी 1903 में आइंस्टाइन सीधे गया अपने मम्मी के पास और सीधा बोल दिया, पूछा नहीं, बोल दिया, मॉम मैं मिलेवा से शादी करने जा रहा हूं, आप आ रहे हो चर्च में? मम्मी क्या करे। सो फाइनली दे गॉट मैरिड इन 1903 and they had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Faltered means became weak. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा जो स्टार्टिंग में फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, अब धीरे धीरे मिलेवा को साइंस में और पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होते गया। अपने 2 लड़कों में, अपने 2 बच्चों में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। एंड ग्रेजुअली शी स्टार्टेड सेइंग टू आइंस्टाइन दैट ही नीड्स टू फाइंड टाइम फॉर द बॉयज, ही नीड्स टू टेक देम टू प्ले, ही नीड्स टू टेक देम आउट फॉर अ स्ट्रोल और समथिंग वॉक। तो ये सब के लिए आइंस्टाइन के लिए टाइम नहीं था। आइंस्टाइन को अपना पूरा टाइम बस सिर्फ थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, भाई वाइफ और बच्चों को कभी मूवी लेके जाओ, कभी गार्डन लेके जाओ, ये सब आइंस्टाइन के लिए पॉसिबल नहीं था। सो आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, दे केप्ट फाइटिंग एंड फाइटिंग, बराबर, एंड आफ्टर 16 years ऑफ दैट मैरिज, 16 साल फाइटिंग करने के बाद, मतलब 16 साल के मैरिज में अनहैप्पी रिलेशनशिप के बाद, दे फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919 आफ्टर 16 years. And Einstein married his cousin Elsa the same year. तो जैसे समझ लो इसने मिलेवा को जिस साल डिवोर्स दिया उसी साल इसने अपनी कजिन एल्सा के साथ शादी कर दी, बराबर। अब यहाँ पे सोचते होंगे एल्सा कजिन तो मतलब सिस्टर हो गई, लेकिन इसमें स्टूडेंट से एक फर्क है। हिंदू रिलीजन के अलावा जो
बहुत सारे दूसरे रिलीजियंस होते हैं, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली. It is not considered a problem in many religions of the world to marry your relatives. ऐसा जरूरी नहीं है. हिंदू रिलीजन में ऐसा है कि हम कजिन सिस्टर्स को भी रियल सिस्टर्स मानते हैं. बट इन मेनी अदर रिलीजन्स, मैं कोई एक रिलीजन की नाम नहीं ले रहा हूं, बट इन मेनी अदर रिलीजन्स इट इज परफेक्टली ओके टू मैरी द कजिन्स. इट इज नॉट रॉन्ग. ओके, जरूरी नहीं है कि जो हमारे रिलीजन के हिसाब से सही हो वो हर एक रिलीजन के हिसाब से सही हो. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वी शुड नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स. लास्ट ईयर 2-3 लड़कों ने मेरे को ये चीज पूछी थी क्लास में कि सर ऐसे कैसे, कजिन से शादी कैसे हो सकती है, किसी ने ऑपोज नहीं किया, किसी ने अरेस्ट नहीं किया, क्यों करेंगे? इट इज अ पर्सन्स पर्सनल चॉइस टू गेट मैरिड. तो ये ठीक है, आई एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन कि ये होता है. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, नॉट अ प्रॉब्लम. Einstein's new personal chapter means न्यू वेडिंग. यहां पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट न्यू पर्सनल चैप्टर मीन्स न्यू वेडिंग. इट कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. तो 1915 में इसने Theory of Relativity publish की थी और ये न्यू इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. So it was a new understanding about the theory of relativity and of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought the proof that it was accurate. 1919 में ये एक्यूरेट साबित हुई इसकी थियरी. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो इसने पहले से ही बता दिया था कि जब सन का एक्लिप्स होगा तो उस एक्लिप्स के टाइम पे जो शेडो पड़ेगा उस शेडो में हम कौन कौन से स्टार्स को देख पाएंगे, ये इसने पहले से ही बता दिया था. तो ये इसकी बड़ी डिस्कवरी साबित हुई, क्योंकि सन का जब एक्लिप्स होता है तो एक्लिप्स में जो कोरोना होता है उसमें मून तो सामने होता है, लेकिन सन की जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है. एंड दीज डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द सन they make the other stars invisible. क्योंकि लाइट ऑफ द सन तो है, मून सामने आ गया है, लेकिन लाइट ऑफ द सन बाकी के स्काई में तो जा रही है. तो कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं. सो ही एक्यूरेटली कैलकुलेटेड विच स्टार्स वुड बी विजिबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द एक्लिप्स, एंड दिस शोड दैट हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज अ सक्सेस. He showed that successfully how the light would be refracted from the sun's penumbral shadows. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution.
And because of this, he received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world, and he was lauded by the press. यहाँ पे lauded means appraised, celebrated, celebrity बन गया ये आइंस्टाइन. नोबेल प्राइज मिला इसको. स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज जो है ये सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाता है. साइंस में पेटेंट्स बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है. हर साल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ 3-4 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है साइंटिस्ट को. सो इट इज अ वेरी रेयर अचीवमेंट which was given to Einstein. So students, we are stopping the chapter over here. We will continue with the remaining part of the chapter, and also we will discuss the question answers when we continue it next time. Till then, you can write down these meanings. Then we shall end. So students, I hope you have written this, right? So I will see you in the next lecture. Till then, goodbye students.